Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare,
हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा आत्माराम प्रभु हरे कृष्णा। प्रभु जी कैसे हैं प्रभु जी? ठीक है प्रभु जी। अब आ गए दिल्ली से वापस? नहीं आए हैं प्रभु जी, कल पहुंचेंगे। अच्छा अभी दिल्ली में है। ओके ओके ठीक है। हरे कृष्ण हरे कृष्णा हरे कृष्णा। धनंजय कुंदन पीयूष सोनू एंड अभिनव हरे कृष्णा। हरे कृष्णा सर। हरे कृष्णा सर। So let us start Bhagavad Gita. ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ततो नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवते उत्तमश्लोके भागवते भक्तिर्भवते नैष्ठिके नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्ण हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे हरे। हरे राम राम हरे। Reading from Srimad Bhagavad Gita, chapter 2, text number 44. So, yesterday who read? Piyush read, na? Yes sir. So let me read to them. भोगैश्वर्य प्रशक्तानां दयापहृतचेतसाम्
मया व्यवसायात्मिका बुद्धि बुद्धि समाधौ न विधीयते। Translation and purport by His Divine Grace Abhay Charanaravindra Bhaktivedanta Swami Maharaj Srila Prabhupada Srila Prabhupada ki jai. Translation. In the minds of those who are too attached to sense enjoyment and material opulence, and who are bewildered by such things, the resolute determination for devotional service to the Supreme Lord does not take place. Purport. Samadhi means fixed mind. The Vedic dictionary, the Nirukti says, Shamyak adhiyate asmin atma tattva yathatmyam. When the mind is fixed for understanding the self, it is said to be in Samadhi. Samadhi is never possible for persons interested in material sense enjoyments and bewildered by such temporary things. They are more or less condemned by the process of material energy. Hare Krishna. Srila Prabhupada की जय। कल हम लोग पढ़ रहे थे, कृष्ण बता रहे हैं अर्जुन को कि वेदों में बहुत सारा विभाग है और ज्यादातर हम लोग जो बद्ध जीव होते हैं वो कर्म कांड में बहुत उत्सुकता दिखाते हैं। इससे फायदा ये होता है कि उनको स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है और स्वर्गलोक में उनको अनलिमिटेड एंजॉयमेंट की प्राप्ति होती है, सेंस एंजॉयमेंट, क्योंकि स्वर्गलोक में बहुत सुंदरी अप्सरा होते हैं, दारू होता है, क्या होता है वो, सोमरस वाइन होता है और उसमें सारे स्वर्गलोकवासी एंजॉय करते रहते हैं। लेकिन इस एंजॉयमेंट में वो भगवान को भी भुला देते हैं कभी कभी, और फिर जब भगवान को हम भूल जाएंगे, कृष्ण को भूल जाएंगे, तो फिर से हम लोगों का अधपतन होगा, फिर हम लोग अधपतन होगा, फिर कर्म कांड करेंगे, फिर जाएंगे ऊपर, फिर ऐसे ही साइकिल चलता है। कल हम लोग इलाबोरेटली डिस्कस किए। तो आज भी कृष्ण बता रहे हैं कि जो लोग, जिन लोगों का मन जो है हमेशा सेंस एंजॉयमेंट में अटैच्ड है, उन लोगों का मन कभी भगवान के सेवा में लग नहीं सकता है, बहुत ही मुश्किल है। कृष्ण यहाँ बता रहे हैं कि जिनका मन जो है were too in the minds of those who are too attached to sense enjoyment and material opulence, who are bewildered by such things, the resolute determination for devotional service to the Supreme Lord does not take place. That resolution, जो determination हम लोग होता है डिवोशनल सर्विस में, भक्ति में, वो नहीं हो पाता है। इसका एकमात्र कारण यही है, टू मच अटैचमेंट फॉर सेंस एंजॉयमेंट। इंद्रिय तृप्ति के इच्छा और उसके प्रति अटैचमेंट हम लोगों को कभी भक्ति मार्ग में नहीं ले जा सकती। तो इसलिए जब हम इंद्रिय तृप्ति से फ्रस्ट्रेशन हो जाते हैं,
जब कितना खाएंगे, सपोज किसी को रसगुल्ला चाहिए, 1 रसगुल्ला खाएगा अच्छा लगेगा, 2 खाएगा अच्छा लगेगा, 3 खाएगा अच्छा लगेगा, 5 तो खा सकता है मैक्सिमम। 5 खाएगा, 5 खाने के बाद और कितना खाएगा, खा ही नहीं पाएगा, फिर फ्रस्ट्रेशन है, बेकार है रसगुल्ला, अच्छा नहीं। हाँ, तो ये मेटेरियल फ्रस्ट्रेशन होता है। हाँ, तो बहुत लोगों को मेटेरियल फ्रस्ट्रेशन भी है। हाँ, काफी लोग हम लोग देखते हैं जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, अमेरिका, जहाँ पे कोई मानव जीवन का ज्यादा मूल्य नहीं है, अमेरिका, यूरोप, तो वहाँ पे सारा फैसिलिटी मिलता है उनको, सब कुछ, बहुत धन है बहुत, लेकिन किसी का किसी के साथ रिलेशन नहीं है। हाँ, सब अपने अपने घर पे एक एक छोटे छोटे कुत्ते रखे हैं, उसी के साथ रहते हैं। कुत्ते को जब लेके जाते हैं बाहर, तो कुत्ते के पीछे पीछे भागते रहते हैं एक पैकेट लेकर। हाँ, जहाँ पे पोटी करता है कुत्ता, उसके पीछे दिखाते हैं, क्योंकि रास्ते में पोटी नहीं कर सकता। ये इंडिया होता तो चलता, लेकिन अमेरिका में नहीं होता है। अमेरिका में रूल है कि आपको भागना पड़ेगा कुत्ते के पीछे पीछे, एक पॉलीथीन लेकर। हाँ, जहाँ पे वो पट्टी करेगा उसको दिखा दोगे फिर। तो ये सेवा हम लोग करते हैं, बड़ा धीरे धीरे इंडिया में भी लोग इसको अडॉप्ट कर दिए, क्योंकि कुछ सेवा है ही नहीं, क्या करेंगे, सेवा नहीं है तो क्या करेंगे। अब से इंद्रिय तृप्ति करेंगे, इंद्रिय तृप्ति के बाद फिर जो है हमारे पास उसका इंद्रिय तृप्ति करें, हमारे पास और कोई नहीं है, कुत्ता है उसका इंद्रिय तृप्ति करें। हाँ, तो इसलिए जब हम भगवान की सेवा में नहीं लगेंगे, इसलिए अगर मन बोलता भी नहीं कि जप नहीं करना है, मन तो कभी नहीं बोलेगा कि चैंटिंग करो, नहीं करेगा। ये है वो है, बहुत बहाना रहता है मन में, मन के अंदर बहुत बहाना होता है, मन बहुत बहाना दिखाता है, बोलता है बहुत काम है, क्या चैंटिंग करो, अभी तो इतना है, अभी तो बहुत कुछ करना है। हाँ, शादी भी नहीं हुआ, शादी करेंगे, घर परिवार बैठाएंगे, अब कितना कुछ करना है, अब कहाँ है टाइम चैंटिंग करने के लिए। हाँ, टाइम ही नहीं, टाइम नहीं है, लेकिन टी स्टॉल में बैठ के चाय पीकर गप्पा मारने में टाइम है हम लोगों के पास। तो इसको हम लोग इंद्रिय तृप्ति बोलते हैं। हाँ, काम हम लोग करना चाहिए, काम करने के लिए कोई मना नहीं, लेकिन जब तक हम लोगों के अंदर कृष्ण भावनामृत नहीं आया, तब तक उस काम का भी कोई वैल्यू नहीं होता है, वर्थलेस हो जाता है सब कुछ संसार में। तो इसलिए भगवान की भक्ति करना सबसे उच्च कोटि का कर्म माना जाता है, और कोई कर्म इसके साथ समान नहीं। चाहे आप कितना बड़ा नेशनलिज्म राष्ट्रभक्त बन जाए, कितना बड़ा, हाँ, कोई भी भक्त बन जाए, लेकिन कृष्ण भक्ति जब तक नहीं होगा, तब तक हमारा कॉन्शियसनेस में, चेतना में सुधार नहीं आएगा। इसलिए कृष्ण भक्ति करने से, पहले ही बताया था, ये है सुपर सेट। हम लोग सेट थियरी में पढ़ते हैं, सुपर सेट, सब सेट, ये सुपर सेट है, सबका सुपर सेट। तो इसमें सब कुछ आ जाता है इसके अंदर। जैसे एक पेड़ के जड़ में पानी देने से पेड़ बहुत प्रफुल्लित होता है, उसका जड़ें, उसका ब्रांचेस, उसका पत्ते सब प्रफुल्लित होते हैं। वैसे कृष्ण जो है इस क्रिएशन का जड़ है, उन्हीं से सब कुछ आया है।
जब कृष्ण प्रसन्न नहीं होंगे तो फिर दूसरों का प्रसन्नता का सवाल है ही नहीं, कोई भी प्रसन्न नहीं हो सकता है। हम अगर चाहेंगे बिना कृष्ण को प्रसन्न करके हम लोग किसी और को प्रसन्न कर लेंगे, संभव नहीं, असंभव है। बिना कृष्ण को प्रसन्न किए हम सोचेंगे शिव जी को प्रसन्न कर लेंगे, थोड़ा जल चढ़ाकर दूध चढ़ाकर शिव जी प्रसन्न नहीं हो सकते। हम सोचेंगे बिना कृष्ण को प्रसन्न किए दुर्गा माता को प्रसन्न कर लें, कोई नहीं सकता। इसलिए हम लोग जगन्नाथ मंदिर में भी देखते हैं, पुरी में बिमला देवी का पीछे मंदिर है जगन्नाथ जी। जब भी जगन्नाथ को भोग ऑफर होता है उसके बाद भोग जाता है कहाँ पे? बिमला देवी के पास। फिर बिमला माता उसको ग्रहण करते हैं प्रसाद। जब जगन्नाथ लेते हैं फिर बिमला माता लेते हैं। तो इसलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है। हम लोग कभी कभी भक्त लोगों के आरोप लगता है कि ये भक्त लोग अपने आप को ज्यादा ये मानते हैं, देवी देवताओं का भोग नहीं खाते, प्रसाद नहीं खाते। एक भक्त को कोई पूछे थे मायापुर में, हम उस दिन थे मायापुर में, तो पूछ रहे थे एक व्यक्ति की आप लोग क्यों दुर्गा माता का शिव जी का प्रसाद नहीं लेते? वो भक्त उनको समझा रहे थे, मैं बैठा था उधर। बोले कि नहीं नहीं, आपका गलत ये है, गलत इम्प्रेशन है, गलत सहमी है। क्या गलत सहमी है? आप गलत, आप लोगों के अंदर सोच है। हम लोग सारे सबके प्रसाद खाते हैं, लेकिन आप जो देवी देवताओं को ऑफर करते हैं वो आपके प्रसाद को एक्सेप्ट करते ही नहीं। तो ये प्रसाद हुआ कैसे? आप जो भोग लगाते हैं देवी देवताओं को वो कभी एक्सेप्ट नहीं करते, तो ये प्रसाद कैसे हुआ? तब प्रसाद होगा तब हम लेंगे। तो वो बोले कि क्यों क्यों एक्सेप्ट नहीं करें? बोले एक्सेप्ट इसीलिए नहीं करते हैं क्योंकि आप जितने देवी देवताओं को देख रहे हैं ना वो सब भगवान कृष्ण के भक्त हैं। और जब कृष्ण नहीं खाएंगे प्रसाद, कृष्ण को ऑफर नहीं होगा, तो वो लोग कैसे आप एक्सेप्ट करेंगे इसको? करेंगे नहीं। और हम लोग इसीलिए भी नहीं खाते हैं क्योंकि ऑफर ही नहीं हुआ है। इसलिए वो बता रहे थे पहले जब ब्राह्मण लोग जाते थे पूजा करने के लिए, कोई भी देवी देवताओं को भी पूजा करने जाते थे, अपना घर से वो लेके जाते थे, विष्णु के जो होता है शालिग्राम शिला, शालिग्राम शिला को अपने साथ लेके जाते थे। पहले जब भोग चढ़ाएंगे वो शालिग्राम को चढ़ाएंगे, फिर देवी देवताओं को चढ़ाएंगे। किसी ब्राह्मण को हम जब बुलाएंगे, पहले जमाने में होता था, आजकल तो ब्राह्मणिकल सोसाइटी थोड़ा डिग्रेड हो गया। पहले ब्राह्मण लोग जब भी जाएंगे, अगर हम बुलाएंगे सरस्वती माता का पूजा करना है तो वो लोग आएंगे, लेकिन अपने साथ शालिग्राम लेके आएंगे, विष्णु शालिग्राम। उसको लाके पहले स्थापना करेंगे, फिर उसमें फूल चढ़ाकर उनको पहले भोग ऑफर किया जाएगा, फिर वो भोग जब प्रसाद बन जाएगा फिर वो प्रसाद को सरस्वती माता को ऑफर किया जाएगा। फिर सरस्वती माता को ऑफर करने के बाद सब लोग प्रसाद लें। ये विधि है एक्चुअली। ये विधि को हम लोग अगर फॉलो नहीं करते हैं देन कोई देवी देवता प्रसन्न नहीं होंगे, ना कोई एक्सेप्ट भी करेगा हमारा ऑफर। दिस इज वेरी ट्रू एंड ऑल्सो ये हम लोग पढ़े थे भागवतम में, पहले भी डिस्कस किए थे। तो प्रभुपाद यहाँ पे बता रहे हैं समाधि मीन्स फिक्स्ड माइंड। The Vedic dictionary, the Nirukti says, Samyak adhyate asmin atma tattva yathamyam. When the mind is fixed for understanding the self, it is said to be in samadhi. वही समाधि। समाधि का मतलब नहीं है आंख बंद कर बैठ गए और दिमाग में कुछ और चल रहा है। समाधि का मतलब है who is completely
in consciousness that he is part and parcel of Krishna. He is a servant of Krishna. He is servant of all the living entities. Krishna is the supreme controller, supreme personality of Godhead, is the supreme authority. ये consciousness जब तक हमारे अंदर नहीं आया, Krishna is the owner of everything, he is the master of everything. ये कॉन्शियसनेस हमारे अंदर हमेशा रहना चाहिए. अगर ये कॉन्शियसनेस नहीं है तो हम लोग कोई मेडिटेशन करे, कितना भी कर ले, कितना भी योगा कर ले, हाथ पैर उठाकर आंख बंद करके, कुछ नहीं हो सकता. ये कॉन्शियसनेस हमारे अंदर आना चाहिए, इसको डेवलप करना पड़ेगा. We have to develop it. It is said to be in samadhi. Samadhi is never possible for persons interested in material sense enjoyments and bewildered by such temporary things. Samadhi जो होता है completely undisturbed. अगर हम कोई भी मेटीरियल अटैचमेंट में रहे तो हमेशा डिस्टर्ब रहेंगे हर टाइम पे, क्या होगा क्या नहीं, क्योंकि हम लोग हमेशा फ्यूचर के लिए वरीड रहते हैं, अरे क्या होगा. फिर हम लोग पास्ट में हमेशा सोचते रहते हैं. इसलिए एक वर्ष से भगवद गीता में कृष्ण ही बोल रहे हैं, ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा ना सोचती ना आकांक्षति. जो ब्रह्मभूत में स्थिर है जो व्यक्ति, वो हमेशा प्रसन्न चित रहते. ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा, वो आत्मा जो है हमेशा प्रसन्न रहते हैं. क्यों रहते हैं? क्योंकि ना कांक्षति ना सोचती. ना वो अपने पास्ट को लेकर लैमेंट करते हैं, ना अपना फ्यूचर को लेकर ज्यादा चिंतित रहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि कृष्णा सबको प्रोटेक्शन दे रहे हैं और उनको भी प्रोटेक्शन वही करें, कृष्णा प्रोटेक्ट करें. हमेशा कृष्ण के शरण में ही रहते हैं, ये जानते हुए कि कृष्ण इज द ओनली प्रोटेक्टर. नोबडी कैन प्रोटेक्ट nobody else. तो इसलिए ना वो अपने पास्ट को लेके ज्यादा चिंतित होते हैं. हम लोग ज्यादातर इसी में रहते हैं, प्रेजेंट में बहुत कम टाइम रहते हैं. पास्ट को ज्यादा सोचते हैं, ये गलती हो गया, बड़ा गलती हो गया, ऐसे नहीं करना चाहिए था, कैसे कर दिया, मेरा लाइफ ऐसे हो गया. हाँ, फिर फ्यूचर को लेके सोचते हैं, क्या होगा, हाँ मेरा क्या होगा. ऐसे ही हमारा जीवन चला जाता है. प्रेजेंट में हम लोग बहुत ही कम टाइम रहते हैं. 1% टाइम भी प्रेजेंट में हम लोग नहीं रहते. अगर देखा जाए तो बहुत मुश्किल से रहते हैं 1%. तो इसलिए जब तक हम कृष्ण भक्ति नहीं करेंगे और कृष्ण भावनामृत में भावित होने के लिए कोशिश नहीं करेंगे तो हम लोगों को ऐसे ही हमारा जीवन वृथा चला जाएगा और हम लोग ऐसे ही फिर कौन सा जोनि प्राप्त होगा कुछ पता नहीं. बिकॉज प्रभुपाद हमेशा बोलते हैं, भागवत से वो श्लोक याद करके बोलते हैं प्रभुपाद कैंटो में, पदम पदम यद विपदम. हर स्टेप में यहाँ डेंजर है. मटेरियल प्लेटफॉर्म इज फुल ऑफ डेंजर. तो हमेशा कृष्ण भगवान कृष्ण के शरण में रहकर कृष्ण को याद करते हुए अपना जीवन को निर्वाह करनी चाहिए. इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर बोलते हैं अपने सामने, नामाश्रय करी जतने तुम्हें थाकहो अपन काम कार्य. नामाश्रय करी जतने तुम्हें थाकहो अपन काम. हमेशा इस हरिनाम जो कृष्ण से अभिन्न है, हरे कृष्ण महामंत्र,
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। इस हरिनाम के शरण में रहकर हमेशा अपना जीवन निर्वाह करना चाहिए। हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण। आत्माराम प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु। आज चर्चा हुआ प्रभु जी कि जो भी मनुष्य है वो हमेशा ही अपने जो विषय भोग में रहता है, तो उसे भक्ति करना उसके लिए बहुत ही मुश्किल है। तो भक्ति करने के लिए मनुष्य को स्थिर मनुष्य को अपना मन स्थिर रखना चाहिए, अपने इंद्रियों को कंट्रोल में रखना चाहिए। कि जैसे मुझे श्लोक याद आता है, आ रहा है, पूरा तो याद नहीं है, कि जो भक्ति होता है, भक्ति करे कोई सूरमा, जाति वर्ण कुल खोए, कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति न होए। तो कहते हैं कि जो भक्ति करने वाला होता है वो सूरमा होता है, क्योंकि वो जो है आज के इस कलयुग में अपने मन को, अपने इंद्रियों को कंट्रोल में रखने की कोशिश करता है और उसके बाद वो भक्ति करता है। तो जो लोग हमेशा मतलब 4 चीजों में संलिप्त रहते हैं, ईटिंग, स्लीपिंग, मैटिंग एंड तो इसमें जो है, जो डिफेंडिंग, इसमें जो रहते हैं, हमेशा चिंतित रहते हैं। जैसा आज चर्चा हुआ कि हमेशा चिंता होगा कि कल क्या हो जाएगा, और ये मैंने क्या कर दिया, कि हमेशा उसी चिंता में चिंतित रहते हैं। और आजकल लोगों के चेहरे पे हंसी खत्म ही होता जा रहा है। इतना चिंता और चिंता करके कर कुछ नहीं पाते हैं। तो इसलिए कहते हैं कि चिंता जो है वो चिता समान है और जिंदा आदमी भी मुर्दा के समान रह रहा है। तो चिंता से, और पहले भी एक दोहा था कबीरदास का कि चिंता से चतुराई घटे, दुख से घटे शरीर। तो उस तरह का जो बात है कि चिंता नहीं करना है, हमें चिंतन करना है, भगवान का चिंतन करना है, भगवान का चिंतन करते हुए और सारी चिंता उन पे छोड़ देना है। जो पूरे दुनिया को चला रहे हैं, समझिए उनके पास कितना चिंता होगा। हम अपना एक आदमी का लाइफ को इतना चिंता कर रहे हैं। अगर इसी तरह जो है जैसे कि कोई मुख्यमंत्री है, वो कहेगा कि पूरा राज्य चलाना है भाई, कहाँ क्या हो जाएगा। कोई प्रधानमंत्री है, वो कहेगा पूरा देश में क्या चल रहा है, इतना चिंता। और कोई भगवान है, बहुत बड़े हैं, तो उनको पूरे संसार की चिंता है। इस तरह से कितने करोड़ों संसार हैं। तो इसलिए चिंता नहीं करना है, हमें चिंतन करना है भगवान का, और सब भगवान पे छोड़ करके प्रभु भक्ति में लगना है। अपने इंद्रियों को संयमित रखते हुए प्रभु भक्ति करनी है। प्रभु भक्ति बहुत आसान है अगर हम अपने मन को प्रभु चरणों में लगाए रखें। अगर मन को प्रभु चरणों में नहीं लगाए हुए हैं तो मन इधर से उधर भटकेगा, और मन सबसे तेज गति से भटकता है। तो अगर हम अपने मन को संयमित रखते हैं, मन को संयमित करने के लिए हमारा कर्म भी ठीक होना चाहिए। तो कहने का एग्जाम्पल है कि आज चर्चा हुई कि लोग कुत्तों पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, और कई जगह बाहर देखा जा रहा है कि अपने माँ बाप को छोड़ दिए, माँ बाप का कोई सेवा नहीं हो रहा है, और लोग कुत्तों की सेवा ज्यादा कर रहे हैं। तो उससे भी ज्यादा कुत्तों का ध्यान रख रहे हैं, कुत्तों को क्या खाना देना चाहिए, कहाँ सुलाना चाहिए, ये नहीं खाया है, और अपना माँ बाप तक को छोड़ दिए हैं। तो उनसे भक्ति दूर दूर तक नहीं हो पाएगा। और
हमारे यहाँ जो भारतीय संस्कृति में, हिंदू परंपरा में जो ये है कि गौ सेवा होता है। लोग लोग पहले भी अपने घर में गाय रखते थे, ज्यादा से ज्यादा लोग गाय रखते थे। मुझे भी याद है, मैंने +2 तक गाय की सेवा की है। इंटर इंटरमीडिएट तक, उसके बाद बाहर चले गए, उड़ीसा चले गए, तो वहां पे फिर नहीं कर पाए। मगर मैं बचपन से इंटरमीडिएट तक गाय को खुद ही खाना देता था और गाय की सेवा करता था। तो ये परंपरा हमें फिर से शुरू करनी चाहिए कि जो मैं सोच भी रहा हूँ कि अब पढ़ाई लिखाई करके वापस आया हूँ तो मैं फिर गौ सेवा करें। तो गाय की सेवा करना बहुत ही अच्छा चीज है, उसकी सेवा करनी चाहिए। और साथ ही साथ अपनी और अपना सेवा तो करना ही चाहिए, और अपने माँ बाप का सेवा जरूर करना चाहिए। ये चीज है। और आज के श्लोक में बताया गया कि जो व्यक्ति हमेशा मतलब जो है अपने जो सेंसेस है उसको ग्रेटिफाई करने के में लगा रहता है, अपना जो इंद्रिय तृप्ति है उसी में लगा रहता है, वो भक्ति के बारे में नहीं सोच सकता है। अब जिसको सपोज स्मोकिंग का आदत है या ड्रिंकिंग का आदत है, या जरूरत से ज्यादा सोना, ये भी एक दिक्कत है। जरूरत से ज्यादा खाना खाना, कितना हमको खाना है, कितना हमको सोना है, कितना कहाँ पे समय देना है, ये सारा चीज हमेशा सोच के करना चाहिए, क्योंकि समय चला जाएगा, वो फिर वापस नहीं जाएगा, आएगा। तो समय का सदुपयोग करते हुए हमें अपने मन को स्थिर की तरह स्थिर चित्त होकर हमें प्रभु भक्ति में लगाना चाहिए। और अगर हम प्रभु भक्ति में लगाए हुए हैं तो कहीं भी है, कितना भी दुख में है, हमेशा चेहरे पे खुशी रहेगी। यही आज हमने सीखा। प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा सर। थैंक यू सर। सर ने ऑलरेडी सारा कुछ एक्सप्लेन किया है, और आज हम लोगों ने देखा कि जो जिसका माइंड जो है अटैच होता है सेंस एंजॉयमेंट में और मटेरियल अपुलेंस में, वो हमेशा बिविल्डर होता है, और जो डिटर्मिनेशन जो होता है वो भगवान के प्रति जो है वो नहीं आ पाता है। और हम लोग देख सकते हैं कि मटेरियल एपुलेंस के लिए जो भी डिवोशनल सर्विस भी बहुत सारे, लाइक हम लोग देख सकते हैं कि कोई भी, जैसे ध्रुव महाराज का एग्जांपल देते हैं, जब उतानपाद, जब उनके गोद से जब उनकी जो मदर होती है, जो सुरुचि, वो हटाती हैं, तो किस तरह से वो मटेरियल अपोलेंस के लिए वो भागते हैं। और जब ओरिजिनल जो चीज है, जो डिवोशन सर्विस, जो लॉर्ड है, अगर वो मिल जाते हैं तो फिर वो जो मटेरियल अपोलेंसेज और जो सेंस इंजॉयमेंट की चीजें होती हैं वो सब उसके सामने छोटी पड़ जाती हैं। तो उसी तरह से हम लोग देख सकते हैं कि कैसे हम लोग को जो है माइंड जो है, आज के लर्निंग पॉइंट हम लोग देख सकते हैं, जिसमें सर ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि जो समाधि है उसका मतलब क्या है, कि हम लोग को माइंड जो है फिक्स करना चाहिए कृष्णा कॉन्शियसनेस में। और अगर हम लोग माइंड को, अगर हम लोग जैसे ही अगर फिक्स कर पाते हैं तो हम लोग जो है मटेरियल अटैचमेंट जो भी है वो हम लोग का जो है वो धीरे धीरे चला जाता है। और सर ने बताया कि हम लोग को हमेशा प्रेजेंट में रहना चाहिए, तभी हम लोग जो है अपने आप को जो है उस तरह से कर पाएंगे। अदरवाइज हम लोग जो है बिविल्डर ही रहेंगे हमेशा। जो थिंकिंग है, हम लोग ओवर थिंक करते रहेंगे कि आगे क्या होगा, फिर पीछे जो है उसको हम लोग कैसे सही करें। तो हम लोग अगर डिवोशनल सर्विस में रहेंगे तो भगवान का जो प्लानिंग होता है वो बहुत ही परफेक्ट होता है। जैसा सर ने भी एग्जांपल दिया था कि जो बेनियन ट्री होता है उसमें उसका जो एक विशाल पेड़ है, उसका जो फल होता है कितना छोटा होता है। वो इसलिए होता है कि जितने भी जो जीव जंतु होते हैं, जब गर्मी बहुत होती है और जो भी रेस्ट करने आते हैं, ये आदमी भी होते हैं जो कि थके हारे होते हैं, वो अगर रेस्ट करना चाहें तो उस पेड़ के नीचे वो आराम कर सकते हैं। तो उनका जो चीज बनाया गया है, या फिर जो चीज जो जिसके लाइफ में जो घटित होता है, तो वो एक परफेक्ट प्लान के अकॉर्डिंग होता है भगवान के। तो हम लोग को उसमें बिविल्डर नहीं होना चाहिए, और हम लोग को
डिवोट जब तक नहीं करेंगे, जिस तरह से ध्रुव महाराज डिवोट किए थे, और जब भगवान का जब दर्शन हो गया था, तो और जो उनके अर्च विग्रह फॉर्म जैसे अभी हम लोग जो है अर्च विग्रह फॉर्म भगवान का रख के अगर हम लोग खुद डिवोट करें, तब हम लोग जो है स्टेबल हो सकेंगे। और जो हम लोग का जो एक्चुअल जो समाधि वर्ड होता है, जिसमें ऐसा नहीं है कि समाधि का मतलब आंख बंद करके हम लोग ऐसे ही लगे रहे, तो वो एक्चुअल मीन्स होगा जब भगवान को हम लोग डिवोट कर देंगे, तभी हम लोग एक्चुअल समाधि हम लोग कर पाएंगे, जब हम लोग का माइंड फिक्स होगा। तो यही चीज आज देखे सर। हरे कृष्णा सर। कृष्णा, थैंक यू कुंदन। हरे कृष्णा धनंजय। हरे कृष्णा। ओके सर। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा सर। हाँ बोलो बोलो। हरे कृष्णा सर, हरे कृष्णा आत्माराम प्रभु, हरे कृष्णा कुंदन प्रभु। तो सर ने आज डिस्कस किए कि व्हाई कंट्रोलिंग आवर माइंड इज मोर इम्पोर्टेंट। कि प्रभुपाद ने इसी परपट में भी एक्सप्लेन किए हैं, those who are attached in sense enjoyment and material opulences, they are bewildered. And to control our mind is most important, more and more engagement in the devotional service and sincerity also. क्योंकि सर ने बहुत बार एग्जाम्पल भी दिया कि the mind is the main culprit, because if we controlling our mind, then everything will be should favor for the devotional services. सो इसलिए माइंड को कंट्रोल करने के लिए हमेशा वी शुड द एसोसिएशन, एंड इट इज नीड द गुड एसोसिएशन, एंड ऑल्सो वी शुड अवॉइड द ईगो इन आवर माइंड। सर ने ईगो का एक्सप्लेन किया था कि ईगो, दैट इज द स्पेलिंग इज ईजीओ, ईगो दैट इज ई फॉर एंगेजमेंट इन मैनुअल सर्विसेज, and G refers to the give credit to the others, and O that it means offer respect or offer obeisances to all. तो इसी माध्यम से हम लोग हमारा ईगो को हटा सकते हैं और माइंड को मोर एंड मोर डिवोशनल प्रैक्टिस में ले जा सकते हैं। क्योंकि गीता में भी ये कहा है कि क्लीनलीनेस इज मोर इम्पोर्टेंट। सो बाय डूइंग मैनुअल सर्विस we can clean our heart, we can clean our mind, so then we can control our mind. So सबसे most important, if we control our mind, and if we changing our thinking process, then we can more and more engage in devotional service. तो इसलिए सर भी कहा कि भक्ति विनोद ठाकुर का भी एक वैष्णव संघ में है कि भक्ति अनुकूल मात्र कार्य शिकार, भक्ति प्रतिकूल भाव वर्जन अंगीकार। जो भक्ति अनुकूल के लिए है तो हम we should accept always this association, but जो भक्ति प्रतिकूल है, we should or immediate we reject this association. That's are given an example how we can spend our time in the our in non necessary places. तो इसलिए माइंड को कंट्रोल करने के लिए फर्स्ट नीड द एसोसिएशन। वंस वन महाराज गिवन वन एग्जांपल दैट कि जैसे कि हम लोग आंख जलाते हैं और आंख में लकड़ी से थ्रू हम लोग आंख जलाते हैं, जब हम लोग वो लकड़ी को हटा देते हैं वो अपने आप निभ जाता है। अगेन वी लकड़ी को एक साथ कर देते हैं, तब एक दूसरे को जलाने के लिए हेल्प करते हैं। तो इसी तरह good association always important. One can inspire to others, one can motivate to others, that always engage our mind in more and more
uh, positive thinking, and then we always just motivate to do our uh, Krishna services. तो इसलिए in this age of Kali, it is most important by doing chanting of the holy name of the Krishna, we can more and more engage in our mind in the Krishna's activities. तो इसलिए सर कहते हैं कि when we chanting always we should hear, because most of the time when we do chanting, mind is like there is no constant or fixed mind. तो इसलिए this type of chanting is not proper chanting. तो हमेशा when we do chanting, always we should hear whatever we telling. That is the chanting of the Harinam, chanting of the holiness of the Krishna, because the name of the Harinam and the Krishna is non-different. So that is most important to controlling our mind. If we control our mind, and if we thinking process can change, always good for our devotional service. And for that, association is the first and foremost, because it always help to control our mind. That I can learn from this text and set discussions. Hare Krishna, sir. Hare Krishna. Thank you, Dhananjay. Beautiful. Hare Krishna. Abhinav. हरे कृष्णा सर। तो आज हमने पढ़ा कि जो समाधि के बारे में पढ़ा कि समाधि इज अ स्टेट ऑफ फिक्स माइंड, जो हम अपने दिमाग को कंट्रोल करके भगवान की ध्यान में लगाते हैं। इट इज जो समाधि है वो स्टेट ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन है, दैट कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड एंड ऑल ऑफ अस आर सर्वेंट ऑफ गॉड, और यही हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है। तो जब ये रियलाइजेशन हमें होता है तो वही स्टेट ऑफ समाधि होता है, और हम ये चीज़ समझ लेते हैं कि पूर्णतः हम अपने आप को जब हम इस चीज़ को समझ लेते हैं और पूर्णतः अपने आप को कृष्ण को समर्पित कर देते हैं, तो वही रियल स्टेट ऑफ समाधि होता है। और जब हम ऐसा करते हैं तो हम कृष्ण की शरण में होते हैं, और हम अपने पास्ट और फ्यूचर के टेंशन से मुक्त होकर प्रेजेंट में अपना जीवन व्यतीत करते हैं, क्योंकि जो भक्त होते हैं उन्हें ये पता होता है कि जो भी पास्ट में घटित हुआ है वो कृष्ण की मर्जी से हुआ है, और जो भी फ्यूचर में होगा वो भी कृष्ण की मर्जी से होगा। इसलिए भक्त कभी इस चीज़ की चिंता नहीं करते हैं। लेकिन जो प्रेजेंट टाइम है उसमें हम लोग जो है वो अपने सेंस ग्रेटिफिकेशन में लगे रहते हैं, और जो सेंस ग्रेटिफिकेशन से इंजॉयमेंट प्राप्त होता है उससे कभी हमें खुशी नहीं प्राप्त होती है। हम कितना भी इंजॉय कर ले, लेकिन हमेशा हम अपने पास्ट और फ्यूचर को लेकर चिंतित रहते हैं और हमेशा दुखी रहते हैं। तो यही हमने आज पढ़ा सर। हरे कृष्ण। Krishna Abhinav, thank you. Beautiful. Hare Krishna Piyush. हरे कृष्णा सर। कल जो है हम लोगों ने सर पढ़ा था कि जो लोग वेदास के अंदर जो दिए गए कर्म कांड को जो है पूरी निष्ठा से करते हैं, वो लोग जो है हेवनली प्लेनेट पहुंच तो जाते हैं, मगर अगर वहां जाके अगर वो लोग भगवान को भूल जाएं, भगवान का नाम लेना भूल जाएं, तो फिर से जो है उनका इस मानव जीवन में जो है उनका जो है वो पतन होता है, और फिर से वो जो है वो लोग डिग्रेड हो जाते हैं। और यही जो है जीवन का जो है वो चक्र निरंतर जो है वो चलता रहता है, मगर कभी भी जो है भगवान के जो है धाम नहीं पहुंच पाते हैं। और यहाँ पे भी जो है भगवान जो है वो बता रहे हैं कि जो लोग मटेरियल डिजायर्स के जो है उसके अंदर वो संलग्न रहते हैं और उनके अंदर ही जो है उन लोग की जो है चिंता लगी रहती है, तो वो लोग जो है कभी भी भक्ति के मार्ग पर वो लोग आगे नहीं बढ़ पाते हैं, और उनका जो मन होता है वो कभी भी जो है भक्ति के अंदर जो है वो संलग्न नहीं रह पाता है। और यहाँ पे जो है प्रभुपाद जो है हम लोग को बता रहे हैं कि समाधि का अर्थ क्या होता है। तो समाधि का अर्थ क्या होता है वो ऐसा बोलते हुए कह रहे हैं कि व्हेन द माइंड इज फिक्स फॉर अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ, इट इज सेड टू बी समाधि।
और जो लोग जो हैं वो अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए जो मटेरियल्स हैं इस वर्ल्ड के जो मटेरियल्स हैं उनको जो है अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए जो है वो जो लोग लगाते हैं वो लोग जो है कभी भी समाधि की स्थिति को जो है वो लोग प्राप्त जो है वो नहीं कर सकते हैं। और साथ ही साथ में जो है यहाँ पे सर ने भी बताया कि चाहे कि अपने जो मन है अपना जो माइंड है उसको अपने वश में रखना जो है क्यों जरूरी है, क्योंकि हम लोग देखते भी हैं कि हमारा जो माइंड होता है वो जो है अपने पास्ट के अंदर भी रहता है कि हम लोगों ने जो है वो क्या गलतियां कर दी क्या नहीं करी, और साथ ही साथ जो है हम लोग जो है भविष्य के बारे में भी जो है वो चिंतित रहते हैं। और जो प्रेजेंट के अंदर जो हमारा कर्म है उसको जो है हम लोग नहीं कर पाते, जिससे कि जो है हमारा भविष्य और भी जो है वो खराब ही होता है। और ये सब सोचने के कारण जो है हम लोग जो है वो भक्ति से भी जो है वो दूर जो हमारा जो मन है वो जो है भक्ति से भी जो है दूर भागता है। इसलिए जो है हमको जो है ये समझने की ज़रूरत है कि जो कुछ भी संसार के अंदर घटित होता है वो भगवान को के द्वारा ही घटित होता है, और भगवान जो है वो हमारी चिंता करने के लिए हैं। इसलिए जो है हमको जो है अपने मन को हरिनाम में जो है वो लगाना चाहिए, और ये तभी पॉसिबल हो पाएगा जब हम लोग अपना एसोसिएशन जो है उसको ठीक करें। हम लोग जो है अपना एसोसिएशन जो है जो भक्त लोग हैं उनके साथ में लगाएं, और साथ ही साथ जो है भगवान के नाम का जो है वो जप करते रहे, ताकि जो है हमारा जो हृदय है हमारा जो माइंड है वो धीरे धीरे जो है शुद्ध होता रहे। तो आज के यही सीखे सर। हरे कृष्ण। Thank you, Piyush. Very beautiful. Hare Krishna. Sonu. हरे कृष्णा सर। आज के क्लास में हमने यही सीखा सर, इंद्रियों के बारे में। जैसे हमारे आदरणीय प्रिंसिपल सर ने बताया कि अपना इंद्रियों पे काबू करना चाहिए, इंद्रियों के अपना बस में करना चाहिए, और बस में करके अपना भगवान का ध्यान करना चाहिए, भगवान कृष्ण जी से कनेक्शन करना चाहिए। जो लोग कहते हैं कि महादेव की पूजा कर लिए, जल ढार दिए, या सरस्वती माँ, मालूम चाहिए कि सबसे पहले कृष्ण भगवान की पूजा करनी चाहिए, कृष्ण भगवान की भोग लगाना चाहिए, तब हम लोग उसका प्रसाद कर सकते हैं। तो कृष्ण भगवान का निमंत्रण ही नहीं दिया गया, उसको हम लोग बोलते हैं प्रसाद है। और फिर सर जैसे सीखे कि जैसे आजकल के लोग हैं कि कुत्ता लेके घूमना मॉडल जमाना मानते हैं, लेकिन घर में मम्मी पापा बोल दे कि बेटा गाय या जानवर है, उसको एक मौनी कुट्टी दे दो या खाना दे दो, नहीं दे पाएगा। लेकिन सुबह सुबह रोड पे लेके कुत्ता घूमेगा तो लोग सोचेगा कि ओह क्या लड़का है, मॉडल जमाना का है। यही सीखे सर। हरे कृष्ण। Thank you, Sonu. Beautiful and very nice. Hare Krishna. Rohit. हरे कृष्णा प्रभु। आज हम लोगों ने यही सीखा कि कृष्ण भगवान जो है ये मतलब गॉड में भी सुपीरियर है, और ये पिछले क्लास में भी हम लोगों ने सीखा था कि कृष्ण भगवान सुपीरियर है, चाहे वो ब्रह्मा हो या फिर कोई भी हो। उनका ध्यान करने के लिए यहाँ आज कुछ स्टेप सीखे थे, जैसे कि एक ये था कि समाधि के बारे में आज हम लोगों ने सीखा कि मेनली कि समाधि मतलब किस तरह से करना चाहिए। समाधि में हम लोग यही मतलब कि वो नो डिस्टर्बिंग जोन में जा करके कृष्ण भक्ति का एक वो रूप है कि इसमें कृष्ण भक्ति करना चाहिए बैठ करके। और मेन आज ये भी सीखा कि हम लोग के लिए लाइफ में जो भी हो रहा है प्रेजेंट में, उनको उसके बारे में सोचना चाहिए। जो बीत गया या फिर जो आने वाला है उसके विषय में सोचकर परेशान नहीं होना है, क्योंकि जो भी हो रहा है वो कृष्ण के मन से हो रहा है, तो वो मेरे लिए जो भी होगा वो अच्छा ही होगा मेरे लिए। और अभी का जो मॉडल जमाना है कि हम लोग को जैसे पशु कुत्ता उत्ता को पाल लेते हैं लेकिन अपने माता पिता पे ध्यान नहीं देते हैं, तो वो वैसा नहीं करना चाहिए हम लोगों को। जो अपने माता पिता है जो एक तरह से भगवान ही हुए हम लोगों के लिए, उनका ध्यान देना चाहिए। हरे Hare कृष्ण Krishna. बाबा। Hare Krishna. Thank you, Rohit. Beautiful.